ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ? देखिए, पहले तो मैं दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के अंदर बिकॉज ये जो प्रोग्राम अभी आप कर रहे हैं ये बड़ा अहम प्रोग्राम है क्योंकि हमारे वर्ल्ड हेल्थ डे के 75 साल पूरे हुए हैं। जब ये वर्ल्ड हेल्थ डे शुरू हुआ था तो उसके बाद इस बार जो मनाया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये इस मौके पर ये प्रोग्राम बहुत ही अहम बन जाता है बिकॉज आजकल कोविड का ज़माना भी है और कोविड के केसेस आने शुरू हो गए हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हेल्थ के बारे में कि सब लोगों को कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो जैसे आपने बताया कि कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और कोविड जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हमें मान लेना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि कोविड जो है एक सर्दी जुकाम के वायरस की तरह अब ये है जिसके कारण मोर्टेलिटी, जिसके कारण मृत्यु दर ना के बराबर है। और ये जो है हमारे और वायरस जैसे हमारे पास पहले से सर्दी जुकाम होते थे और हम उसकी केयर नहीं करते थे उसी तरह का वायरस हो गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी एहतियात छोड़ दें। हमने जो कोविड में सीखा है कि हमने मास्क पहनना और हमने थोड़ा अपना एहतियात रखना, अपने कफ एटिकेट्स के बारे में करना, वो सब हम जारी रखें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके दे नाल हुण कोरोना ने पंजाब की गल करिए, देश की गल करिए, केसेस एक बार फिर तो बढ़ने शुरू हो गए। डॉक्टर सोनू मैं ये जानना चाहवांगी कि हुण जिहड़ा ये वायरस आया है एक बार फिर तो कई लोगों को एडवाइस किया जा रहा है होम क्वारंटाइन और जिहड़े भी प्रोटोकॉल होंदे हैं वो लोगों को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसका असर भारत दे विच हुण किस तरीके दे नाल हो रहा है? देखिए, कोविड के केसेस वाकई में दोबारा वापस आने शुरू हो गए हैं और ये हर साल आएंगे क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस है जो अपना रूप रंग बदलता है और हमेशा नए स्ट्रेन आते हैं। पर जो आगे के स्ट्रेन आएंगे या आ रहे हैं वो बहुत ही धीमे हैं। मतलब धीमे का मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक नहीं है और उसके कारण मृत्यु दर ना के बराबर हो रही है। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल वो रहें, बट इसके लिए एक प्रिकॉशन है जो हम पहले से बोलते आ रहे थे कि अपना जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और इस तरह की बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से कहते हैं, उनसे अपने आप को बचाव रखें और दवाइयां अपनी चालू रखें। अगर दवाइयां हम, क्योंकि जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होता है और इस तरह की बीमारियां होती हैं तो उसके अंदर कोविड जो है वो जोर से पकड़ता है और उनके अंदर मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने खान पान का, हमारी जो हम बोलते हैं कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं,
क्योंकि ये जो है ना हमारी इम्यूनिटी कम करती है, हमारी बॉडी के अंदर शक्ति कम करती है और हमारी लड़ने की क्षमता जो है अगर कोविड होता है तो वो कम हो जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈੱਡਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी पेशेंट्स आंदे होने हैं। देखिए हमारा थोड़ा सा भारत के अंदर इस तरह का है कि जब तक कोई बीमारी रहती है तब तक तो उसके बारे में पूरा ध्यान दिया जाता है, पर जैसे ही बीमारी चली जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि बीमारी दोबारा नहीं आएगी, तो हम दोबारा वैसे का वैसे ही खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों ने बिल्कुल वैसे ही चले गए हैं, पर काफ़ी लोग जो हैं, मैं हमारे क्लिनिक्स के अंदर आते हैं, पीजीआई के अंदर भी आते हैं और हम कम्युनिटी के अंदर भी जाकर देखते हैं, लोगों ने अपना वैसे ही खान पान शुरू कर दिया है, वही तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, वही पेस्ट्री और इस तरह की चीज़ें जो हम बोलते हैं मना करते हैं, उस तरह की चीज़ें दोबारा प्रचलन बढ़ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना सिर्फ कोविड-19 बट और बीमारियां जो हमारे देश में, जैसे हिंदुस्तान जो है वो डायबिटिक कैपिटल है, सबसे ज़्यादा मरीज जो है पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में है। हाइपरटेंशन में हर चौथे एडल्ट को एक बीपी की शिकायत है। तो ये दोनों बीमारियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अपना इम्यूनिटी का जरूर ध्यान रखें और फ्रूट्स और सब्जियां जो हैं और हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये अपने डाइट में शामिल करें, और जो तली हुई चीज़ें हैं इनको अपनी डाइट से निकाल दें। और चीनी और नमक, ये दो चीज़ें जो हैं, तली हुई चीज़ें, चीनी और नमक, ये तीन जो हैं हमारे लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ें हैं। जितना कम से कम ले सके उतना अच्छा है। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ। देखिए ऐसा अगर हम पिछले 2-3 वेव्स की बात करें जो हमारी पिछली कोविड की आई थी, तो ऐसा सीजनल पैटर्न हमें नज़र नहीं आया था कि जिसके अंदर हम सर्दियों में या गर्मियों में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे। बल्कि कहीं अगर हम देखें तो थोड़े से केसेस सर्दियों में ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में। पर सीज़न का कोई पैटर्न नहीं है, हमें तो हमेशा ही सावधान रहना पड़ेगा। और सावधान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हम लोगों से बातचीत करना बंद कर दें और लोगों से मिलना बंद कर दें। तो हम लोगों से मिले जुले, पर थोड़ा सा सावधान रखें, अपने दिमाग में रखें कि कोविड जो है हमें हो सकता है और इससे हम थोड़ा सा दूर रहें। हम अगर मास्क की हमने शुरू करी है तो मास्क अगर पहन लेंगे तो खासकर भीड़ भाड़ वाली जगह में मास्क पहन कर रखें, तो उससे हम थोड़ा बचाव कर सकते हैं। क्योंकि बचाव में ही आपका जो बचाव अगर करेंगे तो हम अपनी जान के खतरे से बच सकते हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ है? देखिए वैक्सीनेशन तो हो रही हैं, पर जिन्होंने अगर बूस्टर डोज लगा लिया है, जिन्होंने 2 डोज लगा ली हैं और बूस्टर लगा लिया है, उसके बाद अभी गवर्नमेंट की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि जिसके अंदर और फर्दर वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर लोगों को कोविड हो गया है और उस कोविड के कारण भी जो एंटीबॉडीज बननी थी बॉडी के अंदर वो बन गई है। तो अब जो भी कोविड होगा, हो सकता है कि उसका जो असर है बॉडी के अंदर वो कम हो। तो अभी कोई स्पेशल वैक्सीनेशन कराने की, अगर किसी ने करा ली है पहले से वैक्सीनेशन, तो और ज़रूरत नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ? देखिए अभी तो ये केसेस आने शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी जो नई वेव जिसे हम बोलते हैं, वेव भी नहीं बोलेंगे इसको हम, क्योंकि बहुत ही अभी इतने केसेस नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा। तो वेव तब बोलते हैं जब केसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो अभी तो कहना बहुत मुश्किल है कि किस एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहे हैं, एडल्ट को कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं। बच्चों को शुरू से नहीं करे थे। अगर हम देखें बच्चों के अंदर वायरस की जो अगर करा भी था तो सिम्टम्स बहुत ही कम थे, बिकॉज वो बच्चों के जो अंदर सेल्स होते हैं
उस पर ये कोविड अटैच नहीं करता बड़ी अच्छी तरीके से। तो अभी तो कहना मुश्किल है कि कौन सी उसके एज ग्रुप में आएंगे। हमें आगे महीने 2 महीने में चलेगा पता कि ये पैटर्न क्या है और कोविड किस तरफ को करवट लेता है। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀਏ कि हर किसी को उस उत्ते फोकस करना चाहिए है। देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो उस टाइम कम्युनिकेबल डिजीज़, फैलने वाली डिजीज़ जो है हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी गवर्नमेंट की। उस टाइम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, ये बहुत कम हुआ करते थे। पर जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बदली, हमने ज़्यादातर बैठकर अपने ऑफिस में बैठने लगे, हम काम करना जो है हमारा ऑफिस में शुरू हो गया और हमारा जो भाग दौड़ है और स्ट्रेस बढ़ गया, तो इसके बाद हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ गई। तो आजकल हमारा डुअल बर्डन ऑफ डिजीज़ है, हम बोलते हैं। डुअल बर्डन का मतलब है इन्फेक्शियस डिजीज़ तो अभी भी है, कोविड अभी भी आ रहा है, इन्फ्लुएंजा अभी भी आ रहा है, पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, और ये 2 डिजीज़ हैं जो हमारी हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं, लकवा मारना भी कहते हैं, तो ये उनका कारण होती है। तो इन पर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अपना ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जो है अपने पास लेकर रखें, या फिर अगर आप हर महीने कम से कम अपना एक बीपी चेक कर लें और अपना शुगर चेक कर लें। बहुत ही आसान है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है। अगर बीपी चेक करने की मशीन रख लेंगे तो वो आसानी से अपने आप चेक कर लेती है, और इवन शुगर टेस्ट करने की मशीन भी अपने घर में रख लें तो वो आप सबको बचा सकती है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? देखिए, प्रिकॉशन वही है कि मैंने जैसे बताया कि भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना अगर जाना पड़ता ही है तो थोड़ा मास्क पहन के रखें, क्योंकि जो ये सारे वायरस हैं इंक्लूडिंग कोविड, ये सारे सांस से फैलते हैं। तो एक तो ये हमारा मेन है। हाथ अगर हम मिलाते हैं या हम जाते हैं तो घर में आने के बाद इमीडिएटली अपने हाथ धोएं, और ज़्यादातर आँख पर, नोज़ पर, माउथ पर, मुंह पर अपने हाथ बेफालतू ना लगाएं अगर हम करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हम करें। और खान पीन का, जैसे मैंने बताया कि अपने खान पीन में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो इम्यून बूस्टर्स हों। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैं सुबह उठकर सबसे पहले करता हूं तो जैसे ग्रीन टी का इस्तेमाल करता हूं, और ग्रीन टी का बड़ा जो कप है वो लेता हूं। उसके बाद मैं जूस लेता हूं, जैसे कि गाजर का हो गया, जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं, अगर वो लौकी हो गई, गाजर हो गई, या फिर चकुंदर हो गया, हल्दी हो गई, इन सब का मिला के जूस लेता हूँ। तो ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और फिर एक फ्रूट की बड़ी प्लेट जो है वो कम से कम 2 बार मैं सुबह और दोपहर, ये 3 ये लेता हूँ। तो ये कुछ आसान चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपनी वॉक जो है, अपना जो फिज़िकल एक्टिविटी है, अपना खेलना दौड़ना, और अगर आप ऑफिस में ज़्यादा काम करते हैं तो उसके बाद आप जहाँ ऑफिस है उससे थोड़ा दूर गाड़ी खड़ी करिए, जिससे कि आप ऑफिस थोड़ा पैदल जाएं, और कम से कम अपने 7-8-10 हज़ार स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर करिए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करके। अगर हम ये चीज़ें का ध्यान रखेंगे तो हमारी संभावना जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनकी बहुत कम होगी, और बीमारियां जो हैं वो बहुत कम होगी। जी डॉक्टर सोनू, पिछले दिनों ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ठीक है कि हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कई लोग ना जिम के अंदर जाते हैं और इमीडिएटली एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, और अपनी जो कार्डियो है कार्डियो नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आप इमीडिएटली हार्ट के ऊपर एकदम प्रेशर देते हो
और उसके कारण आपके कई लोगों की मृत्यु भी जाती है। पर मैं ये बोलूँगा कि जिम के अंदर आप जिमिंग करें, पर जिमिंग से पहले अपना वार्म अप जो है वो ज़रूर करें। वार्म अप करना जिमिंग से पहले बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ जिमिंग आपकी जो इफेक्टिव होती है, पर आपको जो ये बीमारी जो जैसे कि आप बोलते हैं कि इमीडिएटली आपका कुछ हो जाता है, तो उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन कोविड ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, कोविड की वैक्सीन बहुत सेफ है और ऐसी कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो कई लोग कोरिलेट करते हैं कि कोविड की वैक्सीन के बाद हमें इस तरह की चीज़ें होने लग गई। तो ऐसी कोई स्टडीज़ में सामने नहीं आया है, ये सिर्फ लोगों की बातें हैं। तो जब तक स्टडीज़ में ये चीज़ सामने नहीं आती कि कोविड के बाद हमारे ये बीमारी शुरू हो गई या हार्ट की बीमारी, हमारे हार्ट कमज़ोर हो गया, तब तक हम उसको कह नहीं सकते हैं। तो कोविड की वैक्सीन बहुत ही सेफ वैक्सीन है और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, पीजीआई, एम्स और बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने ही मिलकर बनाई है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए, बिल्कुल सही बात करी। आज का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस है और मैं इस दिन का महत्व यही होता है कि लोगों को अवेयर करना अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो आज एक अच्छा मौका है, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज से ही अपनी प्रतिज्ञा करें कि हम लोग जो है ये 4-5 चीज़ें मैं बोलूँगा तो इनका पालन करें। जैसे कि आप सबसे पहला तो मैंने ये बताया कि आप जो है तली हुई चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करें। तो अगर तली हुई चीज़ें अवॉइड करते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको कि आप अपने खाने में फ्रूट्स वगैरह जो हैं और जो आप हरी सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ों को शामिल करें और अच्छी चीज़ों, इम्यूनिटी को जो बूस्ट करती हैं उनको शामिल करें। तीसरा जो है फिज़िकल एक्टिविटी, कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है जैसे कि तेज़ चलना। अगर आप 50 साल के ऊपर हैं, 45 साल के ऊपर हैं तो भागे नहीं, तो उसको अवॉइड करें, बिकॉज आपके जोड़ों पे भी असर हो सकता है। तो आप तेज चलें, कार्डियो एक्सरसाइज उससे भी हो जाती है। तो आप तेज चलें और कम से कम आप हर दिन के 8 से 10 हज़ार स्टेप्स वो करके करें, गिन के करें। जो आपका आजकल तो आपके फ़ोन में भी मॉनिटर होते हैं जो बताते हैं कि कितनी स्टेप्स आपने चल दी हैं। चौथी चीज़ जो है अपना स्ट्रेस, अपने जो स्ट्रेस हैं स्ट्रेसफुल ना रहें। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो आप योगा या प्राणायाम इस तरह की चीज़ें करें, बिकॉज ये स्ट्रेस बूस्टर होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को 20 से 30 मिनट हर दिन प्राणायाम के लिए देते हैं या फिर इतना ही योगा के लिए देते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी स्वस्थ रख सकते हैं। और पांचवी चीज़ जो है, जो मैं आपको सबको कहना चाहूँगा, अकेले ना रहें, आप सबके साथ मिलजुल कर रहें और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त व्यतीत करें, बिकॉज उससे भी हमारी जो सेहत है वो अच्छी रह सकती है। बिल्कुल डॉक्टर सोनू, फिजिकल एक्सरसाइजेज ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ? बहुत काफ़ी हद तक अगर हम देखें, काफ़ी हद तक लोग मेंटल हेल्थ को इशू नहीं मानते हैं और टैबू मान रखा है। अगर किसी को डिप्रेशन होती है, किसी को एंजाइटी होती है, वो सोचते हैं कि ये बीमारी नहीं है और वो लोगों को, वो डॉक्टर्स को दिखाते नहीं हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बाई चांस किसी को लगता है कि वो अगर वो ना चाहते हुए भी गुस्सा आ रहा है या फिर ना चाहते हुए भी उन्हें इरिटेशन हो रही है, उन्हें चिड़चिड़ापन हो रहा है, हाँ, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज ये सिम्टम जो हैं ये डिप्रेशन के हो सकते हैं और ये सिम्टम एंजाइटी के भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि ये चीज़ें जो हैं नॉर्मल हैं तब ठीक है, पर वो इलाज करेगा जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। और मेंटल हेल्थ जो है फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तो ये बीमारी जो है ये बीमारी आपको फिर जकड़ लेगी।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੇਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।